بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایران کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے پاکستانیوں کی، کشمیریوں کی، عراقیوں کی، ایرانیوں کی، لیبیا والوں کی، شام والوں کی، مصر والوں کی افتقار ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو جب بھی اسلامی ریاستیں توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس میں عوام کی جو نوجوان نسل ہوتی ہے اس کو ہمیشہ استعمال کیا گیا۔ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب اس کے خلاف الزامات لگے، پروپیگنڈے ہوئے، تو وہاں پر بھی جو بلوائی تھے اور جو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے وہ نوجوانوں کا گروہ تھا، اکثر نوجوان تھے۔ خوارج کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نوجوان ہی ہوں گے، ہر وقت میں جو خوارج نکلیں گے وہ نوجوان ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ میں جو سلطان عبدالحمید خان کے خلاف جو تحریکیں چلی وہ عموماً نہیں بلکہ تقریباً نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ پھر مصر میں جو بغاوتیں ہوئی وہ بھی نوجوانوں کے ہاتھوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ لیبیا میں کرنل معمر قذافی کے خلاف جو بغاوت ہوئی، جو تحریک چلی، وہ بھی نوجوانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اب پاکستان میں فوج کے خلاف ترکی میں جو نوجوان فوجی تھے انہوں نے یہ جو موجودہ صدر ہے طیب اردگان، اس کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ بھی نوجوانوں کے ذریعے سے ہوئی، کیونکہ ان میں فضل اللہ گولن شامل تھا، اور فضل اللہ گولن اپنے اسکولوں اور مشینری کے ذریعے سے ہی کرتا، تو وہ اکثر نوجوان تھے۔ اور پھر یہ ابھی کی بات ہے کہ یہ پاکستان میں فوجی تنصیبات پر پاکستان کے شہداء کی تضحیک کی گئی 9 مئی کو، تو یہ بھی نوجوانوں کے ذریعے سے کیا گیا۔ اب جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی نوجوانوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا اور جو خفیہ ادارے ہیں ان کا یہ بہت پرانا وتیرہ ہے کہ یہ ہمیشہ نوجوانوں کو بھڑکا کر نوجوانوں کے ذریعے سے مختلف قسم کے نظریات اور مختلف قسم کے ایشوز اسلامی ریاستوں میں کھڑا کر کے ہنگامے برپا کرتے ہیں، اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک اور دیر پا ہوتے ہیں۔ اب میں بحیثیت ایک پاکستانی شہری تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتا ہوں تو دشمن نے ہمیشہ 2 نظریات پر اٹیک کیا ہے۔ اسلامی ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے اور اسلامی ریاستوں کو توڑنے کے لیے 2 محاذوں پر سب سے زیادہ حملے ہوئے اور سب سے زیادہ جو ہے وہاں پر بمباری کی گئی، نظریاتی اور دفاعی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس امت کے علماء کرام ہیں، اور دفاعی جو
सरहदी जो हिफाजत है जोग्राफियाई, उसके सरहदों की हिफाजत के लिए फौज है। पिछले 8-10 सालों से हमारे पाकिस्तान में दो तबकात नौजवानों के तनकीद के जिद में है। एक मजहबी तबका उलमाए किराम, उसमें बिला इस्तिस्ना कि कोई आलिम सियासत में लगा हुआ है या कोई आलिम दरस तदरीस में लगा हुआ है, कोई तबलीग में लगा, नहीं, बिला इम्तियाज हर आलिम तनकीद के जिद में है। हाँ, जो तनकीद करने वाले हैं उनका अपना अपना मैदान है। जो सियासी लोग हैं वो सियासी उलमा पर तनकीद करते हैं, जो महल्ले का चौधरी है वो अपने इमाम पर तनकीद करता है, लेकिन तनकीद की जिद में उलमाए किराम है, क्योंकि दुश्मन को पता है कि जब तक मुसलमानों के नजरियाती सरहद मजबूत है, उनमें बगावत पैदा करना, उनमें खियानत पैदा करना नामुमकिन है। तो इसलिए वो उलमा पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, हर मैदान में तनकीद कर रहे हैं। और दूसरा तबका जो जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज है वो फौज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। तुम अपने आप को जंगी साज व सामान के साथ मजबूत करो, और इतना मजबूत करो कि आपके मजबूती से और आपके असलहे से और आपके बम, एटम बम और मिसाइलों से तुम्हारा दुश्मन डरे, अल्लाह का दुश्मन डरे। पाकिस्तान इस वक्त तो सबसे ज्यादा तनकीद के जिद में जो शोबा है वो है फौज, क्योंकि उनको पता है कि जब तक पाकिस्तान में फौज है, मजबूत है, न तो ये इराक बन सकता है, न ये शाम बन सकता है, न ये लीबिया बन सकता है, न ये मिस्र बन सकता है। लेकिन जो ये फौज कमजोर हो जाएगी तो फिर इसके पाकिस्तान के अल्लाह न करे शाम बनने, इराक बनने और लीबिया बनने में एक दिन का टाइम भी नहीं लगेगा। अब इस पर जो लाबीज हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 15, 20, 25 साल लगाकर उन्होंने एक नई जनरेशन को ब्रेन वॉश किया, उनके ज़हन में ये गोबर भर दिया है कि सिर्फ तुम सही हो, तुम जो सोचते हो वो दुरुस्त है, बाकी सब हेरा फेरी है। आपसे पहले जिन लोगों ने अपनी जान दी है, अपने बच्चों की जानें कुर्बान की है, अपना वतन कुर्बान किया है, उनकी न तो कोई कीमत है और न उन्होंने कुछ किया है। करना तो अब आपने। अब आप कश्मीर की ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालें तो इसमें जो समझदार लोग हैं वो इससे बेजार है, लेकिन जो नौजवान तबका है, जिन्होंने अभी तक माँ बाप बड़े भाई के कमाई हुई रोजी खाई है, उनको कुछ भी पता नहीं है, वो लगे हुए हैं जी हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। तो अब ये हालात जो पैदा हो रहे हैं और किया जा रहा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अचानक हो गई हो या पहली दफ़ा हो गई हो। पाकिस्तान में तो ये दूसरी दफ़ा है। पहले नौजवानों को पाकिस्तानी रियासत के अंदर बगावत पर उभारा गया और 9 मई का वाक़या हुआ, फिर तारीख लब्बैक की सूरत में रियासत को तोड़ने और दबाने की कोशिश की गई। तीसरा ये कश्मीर में जब यहाँ उनका बस नहीं चला तो उन्होंने वहाँ पर जो है ये हंगामा खड़ा कर दिया। अब हंगामे का नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के दरमियान में जो अटूट रिश्ता था, जो भरोसा था, वो तोड़ा जा रहा है। और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस अफरा तफरी को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर अपने काज, अपने मकसद में नाकाम हो चुके हैं,
जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ दी, पाकिस्तानी इदारों को गालियाँ दी, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। सब ने कीचड़ उनके मुंह पर मारा, तो अब वो कश्मीरियों को लेकर कश्मीरियों के सपोर्टर बने हुए। कोई बैरून मुल्क बैठा हुआ है, कोई अंदरून मुल्क बैठा हुआ है और फ़ौज को और पाकिस्तानियों को गालियाँ निकाल रहे हैं। हालांकि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो एक दो जुमलों में या एक दो हंगामों में वो टूट जाएगा। इसके लिए लोगों ने अपनी नस्लें कुर्बान की हुई है। इस तरह आसानी के साथ कश्मीर को हाथ से नहीं जाने देते और न जाने देना चाहिए। हमारे भाई हैं जो वहाँ पर मकरूर और मजलूम है, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जी जाए कि यहाँ जो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर है, उसको भी वहाँ इंडिया की गोद में डाल दे और कहें कि जो लोग अभी इस बगावत के और इस कल अदम अवामी एक्शन कमेटी है उसकी हिमायत कर रहे हैं, कि वही लोग हैं जिन्होंने उधर मकबूजा कश्मीर को इंडिया के हवाले करके, मोदी के हवाले करके वो आराम से बैठे और अपने आप को फातेह कहला रहे हैं। लिहाजा तमाम नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि जिस तहरीक के पीछे आप जा रहे हैं, जिस तहरीक के अंदर आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उस तहरीक के पस मंज़र, पेश मंज़र और मकासद पर ज़रूर नज़र करें। सिर्फ नाराबाजी से, सिर्फ हंगामा खेजी से न तो आज तक कुछ हासिल हुआ है और न आइंदा कभी होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।